the holidays and the lockdown, safe and sound inside your houses. So, welcome to class 7. This is the first story of your book Honeycomb, and the name of the story is Three Questions. So, we will read this story. Before reading the book Three Questions, we will understand a king has three questions and he is seeking answer to them. What are the questions? And does the king get what he wants? So the king asks the question, three questions, और उन three questions के आंसर कैसे पता लगा सकता है, कौन बताएगा, क्या king चाहता है? We will read in the story. So let's see what are the three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And the third question was, what is the most important thing for him to do? So these three questions came to a king's mind. किसी king के दिमाग में ये तीन ideas आए, तीन questions आए. कौन कौन से three questions थे? What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? दूसरा, second question was, which people he listen to? कौन से लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और एक राजा के रूप में एज ए किंग उसे सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन से करने चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? क्या उसे ऐसा करना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एज अ किंग? सो these were the three questions. Many wise came to the king, but they all answered his questions differently. So many wise people, wise means intellectuals, the people who are very much intelligent, came to the king, but they all answered his questions differently. Differently means all the people, all the wise men gave answer differently. Their answers were different. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. किसी ने कहा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. सबसे इंपॉर्टेंट करने के लिए क्या है? इसके लिए किंग को क्या करना चाहिए? प्रिपेयर ए टाइम टेबल. एक टाइम टेबल को बनाए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली एंड देन डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू everything at its proper time. और अगर ऐसा कर दिया, only if he could make a timetable and follow it strictly, then क्या होगा? everything at its proper time. सब कुछ क्या होगा? अपने appropriate time पर होगा, एकदम सही टाइम पर होगा, right time पर right काम हो जाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा ये कैसे हो सकता है? How can we make a timetable and how can we know that what a king can do in on such and such day? So making timetable of no use. कुछ wise men ने ऐसा कहा. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. तो उन्होंने आगे ये लॉजिक दिया. क्या कहा? The king should notice all that was going on. जो हो रहा है उसको किंग को नोटिस करते रहना चाहिए. He should observe the things. Avoid foolish pleasure. बेकार के जो foolish pleasure मीन जो हैप्पीनेस है, जो खाली बेकार की खुशियां हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए. कीप हिमसेल्फ अवे. अवॉइड मीन्स कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग. अवॉइड तो किससे अवॉइड करना चाहिए? अलग किससे करना चाहिए? फुलिश प्लेजर से, बेकार के जो हैप्पीनेस है उनसे. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वही करो जो उस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज़्यादा नेसेसरी लगे, इम्पोर्टेंट लगे. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने ऐसा किंग को कहा कि किंग नीड अ काउंसिल. काउंसिल में अ ग्रुप ऑफ वाइज पीपल. और वो ग्रुप ऑफ वाइज पीपल क्या होगा? act at the they will suggest, the council will suggest to the king that who would help means those people, the council, जो council king बनाएगा वो हेल्प करेंगे किंग को एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि किस टाइम पे क्या काम राजा को करना है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. अब ऐसा होगा तो एक आदमी दूसरे आदमी से डिस्कस करके हर एक्शन के लिए राइट टाइम को वो पता कर सकते हैं एंड दे कैन गिव द
एडवाइस टू किंग कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग। जो पहला क्वेश्चन था राजा का कि किसी भी काम करने का सबसे सही टाइम कौन सा होगा या किस टाइम पर मैं काम करूं, तो इसके आंसर में डिफरेंट जो रिप्लाई थे वो वाइज पीपल ने ऐसे दिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अब किसी ने क्या कहा कि टाइम टेबल बनाओ। सम ऑफ द वाइज पीपल से और कुछ लोगों ने क्या कहा कि द किंग शुड फॉर्म अ काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ वाइज पीपल का एक ग्रुप बनाए एंड दे विल सजेस्ट। और अब कुछ क्या कर रहे हैं, बट देन अदर सेड, कुछ और वाइज पीपल थे, उन्होंने क्या कहा दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only a magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब जो तीसरा ग्रुप था वाइजमैन का, दे डिफर, उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों टाइम टेबल और काउंसिल की बात पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अब कोई काम है उस पर किंग ने अर्जेंटली करना है, सो द किंग कैन नॉट वेट फॉर द सजेशंस ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल की सजेशन को वेट नहीं कर सकता है। नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। किसी काम को करने से, किसी काम के सही टाइम में सही डिसीजन लेने के लिए क्या जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिजल्ट ऑफ दैट एक्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कैसे उसका लोगों पे और उसके किंगडम पे इफेक्ट करेगा। तो फ्यूचर को जो देख सकता है वही क्या होगा, सही डिसीजन दे सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और सिर्फ मैजिशियंस, मैजिशियंस कौन होते हैं? वन हु परफॉर्म्स मैजिक, जो मैजिक करते हैं, जो जादू करते हैं, वही फ्यूचर को देख सकते हैं। सो द थर्ड ग्रुप ऑफ वाइज पीपल सेज दैट द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। किंग को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन को रखना चाहिए। ओनली मैजिशियन कैन हेल्प किंग इन दिस मैटर। सो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस, 3 अलग अलग सजेशंस किंग को वाइज पीपल ने दिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट हियर द नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। उसने कहा कौन सा आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है? तो लोगों ने कहा द काउंसलर्स। अदर सेड द किंग हिज काउंसलर एंड अदर सेट द प्रीस्ट। कुछ ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? काउंसलर्स। काउंसलर्स कौन होते हैं? द पीपल इन द कोर्ट, जो काउंसिल करते हैं, जो किंग को सजेशंस, एडवाइस, उसको गाइड करते हैं, उन्हें काउंसलर कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल इन द कोर्ट इज कॉल्ड काउंसलर्स। अदर सेट द प्रीस्ट। कुछ ने कहा नहीं, काउंसलर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स हु परफॉर्म प्रेयर, जो पाठ पूजा करते हैं, जैसे मौलवी हैं, पंडित हैं, गिरजाघर में पादरी हैं। So the priests are the most important. A few others chose the doctors. कुछ ने कहा नहीं नहीं, कोई काउंसलर भी नहीं है, प्रीस्ट भी नहीं है, but the most important person is doctor. सबसे important डॉक्टर होता है। And yet others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ ने कहा नहीं, ना डॉक्टर है, ना काउंसलर है, ना प्रीस्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ऑफ अ कंट्री, सोल्जर्स ऑफ हिज किंगडम। सो टू द थर्ड क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या था? अप्रोप्रिएट टाइम, उसके भी 3 आंसर आए। सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके भी 3 आंसर आ गए। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? उसका आंसर क्या था? टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, काम क्या है? तो कुछ ने इस क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जो साइंस, कि साइंस को प्रमोट करना। अदर्स चोज फाइटिंग, उसने कहा राजा के लिए इंपॉर्टेंट है फाइटिंग। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, उसने कहा नहीं, अपने गॉड को, अपने भगवान को हम हमेशा क्या करना चाहिए? वी शुड वर्शिप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब किंग क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। पहले क्वेश्चन के भी 3 आंसर आ गए, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन के लिए भी 3 आंसर आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट के लिए भी 3 आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए। तो उसे अब क्या हो गया? ही गॉट कंफ्यूज्ड। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो ही डिड नॉट गिव एनी रिवॉर्ड टू एनी ऑफ द पर्सन।
Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. किसी को रिवॉर्ड देने से के बदले किंग ने क्या डिसाइड किया? He should go to that very famous hermit. Hermit means sage. कोई साधु था, कोई संत था, hermit था, who was widely known for his wisdom. And that hermit, that sage was very much popular. बहुत ज़्यादा पॉपुलर था किसके लिए? For his wisdom. Wisdom means for his intelligence. The hermit, a person. Who is the person? Who is the hermit? Here it is explained. Hermit is a person who lives in a lonely life and leads a simple life. अब जाता हूँ hermit के पास, फिर क्या होता है देखते हैं. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब जो hermit था वो he lived in a woodland. Woodland क्या होता है? Wood means यहाँ wood का मतलब क्या है? Small forest. और कभी उस फॉरेस्ट से वो हर्मिट बाहर नहीं आता था. He saw no one but simple people. उसने आज तक किसी को नहीं देखा था हर्मिट ने. Only ordinary people, simple people. And so the king put on ordinary clothes. तो किंग ने भी अपने जो किंग की ड्रेस थी, हाईली जेम्स एंड ज्वेल्स एंड कॉस्टली प्रीसियस क्लोथ्स थे, उनको हटा के एक कॉमन मैन के क्लोथ्स पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. फिर उसने थोड़ा सा उसकी हट से just at a distance he left his horse, वहीं अपने घोड़े को छोड़ दिया, and बॉडीगार्ड को भी वहीं पे रोक दिया, and went on alone, और अकेले चला गया. कहाँ चला गया? In the hut of that hermit, towards the hut of that hermit. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. King hermit के hut के पास में आया. He saw the hermit digging the ground. वो ground को एक किसी shawl से, किसी instrument से digging कर रहा था, खोद रहा था. Digging to loosen the soil. The hard soil जो होती है उसे lose करते हैं उसके help से, so that it is prepared for sowing. उसमें बीज बोए जा सके. तो ground में वो digging कर रहा था in front of his hut. He greeted means उसने wish किया, greet किया, hello, good morning ऐसे कुछ कहा. The king and continued digging. उसने greet तो किया king को, but he never left his work. उसका काम जो digging का चल रहा था उसको उसने continue किया. The hermit was old and weak. बहुत old था, weak था hermit. As he worked, he breathed. का काम कर लेता तो heavily breathing शुरू हो जाती, बस सांसें तेज चलने लग जाती. He went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Right time पर right काम मैं कैसे करूं, ये मुझे बताओ. Who are the people I need most? सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे किसकी है, ये बताओ. And my third question is, and what affairs are the most important? कौन से affairs हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा important हैं. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो hermit जो था वो जो सुनता रहा. He listened to the king, his questions, but not speak. But he did not give any answer. He went on digging. वह अपने काम में लगा रहा. किसके काम में? Digging the ground. You are tired, said the king. King ने कहा शायद तुम थक गए हो. You are tired. Let me take the spade. मैं तुम्हारे spade को, ये जो instrument digging का है, उसको, फावड़े को मैं, मुझे दो. And work in your place. मैं तुम्हारी help करता हूँ. You take a rest. I dig for you. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अपनी spade king को दी. Hermit ने thank कहा. Then he sat down on the ground. और फिर वो ground में बैठ गया. He sat on the ground. So this was the first part of the story. Now what will be the answers of hermit? Will his answer be satisfying to king, or what?
we will see in the next part of the story. In this part, you will write down the question, means you will write down the answers of the questions. What are the three questions? What were the different answers of those three questions by different wise people? So you will do this. Other than this, you will find out all the hard words and see the dictionary and write down the word meaning of those hard words. दो काम करने हैं. एक तो थ्री क्वेश्चन, जो डिफरेंट थ्री क्वेश्चंस किन के हैं उनको लिखना है पहले क्वेश्चन में. दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. और मीन्स जो क्वेश्चन किन के थे और अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर के जो वाइज पीपल ने दिए वो लिखने हैं. एंड देन यू विल क्या करोगे? फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्ड्स अप टू हियर. आपके पास बुक नहीं है तो आप इसी वीडियो को स्लो में चला करके इससे हार्ड वर्ड्स लिख सकते हैं और फिर बाद में डिक्शनरी में उसे देख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर नाउ. ओके, बाय.